کراچی سمیت صوبے بھر میں شدید گرمی کی نئی لہر آنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ درجہ حرارت 50 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، شہر میں سورج آگ برسانے کو ہے تیار۔ شہر کائس سمیت اندرون سندھ میں شدید گرمی کی نئی لہر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کراچی میں 12 سے 16 مئی تک پارہ 40 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں فی الوقت ہیٹ ویو کا خطرہ نہیں، لیکن موسم شدید گرم رہے گا۔ کراچی میں ایسا ہیٹ ویو کا خطرہ نہیں ہے، البتہ کراچی میں گرم اور مرطوب موسم تو چل ہی رہا ہے۔ 36 ڈگری 35 پچھلے دنوں سے ٹیمپریچر چل رہا ہے، لیکن اب گریجولی بڑھے گا یہ، یعنی کل 37 تک جا سکتا ہے اور پرسوں 38 یا 39 تک جا سکتا ہے، اور پھر 13 14 اور ہو سکتا ہے 15 کو بھی، یہ 3 دن ایسے ہوں گے کہ جس میں ہو سکتا ہے 40 تک ٹیمپریچر چلا جائے۔ ادھر ممکنہ ہیٹ ویو کے خطرے کے پیش نظر ڈی سی او جنوبی نے ہیلپ لائن نمبر جاری کر دیے۔ ڈی سی او جنوبی عبدالستار عیسانی نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ دوسری جانب کراچی کے مقابلے اندرون سندھ میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ دادو اور لاڑکانہ میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ ہیٹ ویو کی لہر کا خطرہ، ڈی سی جنوبی نے ہیلپ لائن نمبر جاری کر دیا۔ شہری ہیٹ ویو علامات کی صورت میں ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ کریں۔ محکمہ موسمیات نے درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ شہر میں ایک بار پھر بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ الیکٹرک نے شہر میں صارفین کو لوڈ شیڈنگ کا نیا شیڈول بھیج دیا، جس پر صارفین نے غم و غصے کا اظہار کیا۔ کہ الیکٹرک کے بلند بانگ دعوے دھرے رہ گئے۔ رواں برس سسٹم میں 450 میگا واٹ بجلی شامل کرنے کے دعوے کے باوجود شہر میں لوڈ شیڈنگ کی ابتر صورتحال۔ مستثنی علاقوں کے صارفین کو بھی لوڈ شیڈنگ کا شیڈول موصول ہو گیا۔ شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے اذیت بن گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ رات گئے بجلی بند کر دی جاتی ہے کہ الیکٹرک کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لائٹ کی تو پوری پریشانی ہے لائف کی، پورے تقریباً صبح رات کو بھی 3:30 بجے آئی ہے لائٹ، میرے خیال میں پوری رات گئی بھی لائٹ۔ تھوڑی دیر آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، پھر رات کو ساری رات تنگ کر رہی ہے۔ لائٹ ہے کہاں، نہ رات کو سکون ہے نہ دن میں سکون ہے۔ پوری رات ہو گئی لائٹ تو ہے ہی نہیں۔ ابھی آئی ہے 8:30 بجے کی گئی ہوئی ہے، اب آئی ہے رات کو 1 بجے گئی ہے، 3-3:30 بجے لائٹ آئی ہے۔ لائٹ کے بارے میں تو پوچھو مت۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی دوبارہ 6 سے 12 گھنٹے کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ گزشتہ برس کے مقابلے رواں سال لوڈ شیڈنگ بڑھا دی گئی ہے۔ سندھ حکومت کا ایک اور احسن اقدام، گرمی میں اضافے کے پیش نظر درخت نہ لگانے والی نئی ہاؤسنگ اسکیمز کو ماحولیاتی NOC نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر ماحولیات اسماعیل راہو کی صدارت میں عام اجلاس ہوا۔ اسماعیل راہو نے کہا کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں درخت لگانے والی نئی ہاؤسنگ اسکیمز کو ہی ماحولیاتی NOC دیا جائے گا۔ نئی ہاؤسنگ اسکیمز کو تعمیرات شروع کرنے سے پہلے گرین بیلٹ کے لیے زمین مختص کرنا ہوگی۔ ہاؤسنگ اسکیمز اور شاہراہوں پر متعلقہ اداروں سے مل کر درخت لگانے کی مہم شروع کی جائے۔ درخت کاٹنے والی مافیاز کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ ملک میں آٹے اور گندم کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ چیئرمین سیریل ایسوسی ایشن مزمل چیپل اور چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے حکومت کو بروقت اقدامات کرنے ہوں گے۔ پیداوار میں کمی کے باعث ملک میں گندم کے بحران کا خدشہ۔ چیئرمین سیریل ایسوسی ایشن مزمل چیپل کے مطابق رواں سال گندم کی پیداوار میں کمی کو پورا کرنے کے لیے درآمد پر انحصار بڑھ گیا ہے۔ رواں سال 21 ملین ٹن گندم کی پیداوار ہوئی ہے، جبکہ ملکی کھپت 30 ملین ٹن تک ہے۔ جو ہے فوری طور پہ کوئی پالیسی امپورٹ کی نہیں بنائی، یہ بہت بڑا جو ہے وہ بحران کی شکل اختیار کر جائے گا، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے ساتھ ساتھ گورنمنٹ خود بھی امپورٹ کرے اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس میں شامل کرے، کیونکہ تقریباً جو ہے ہماری 30 بلین کی جو ہے وہ کھپت ہے، اور اپروکسیمیٹلی جو ہماری کراپ جو نظر آ رہی ہے وہ 21 سے 22 ملین ہے۔ تقریباً 70 سے 80 لاکھ ٹن جو ہے مال ہمارے پاس اس وقت ملک میں کمی کا شکار ہے۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم نے بھی حکومت کو خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں گندم کے لیے بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دیکھیے گندم تو ہمارا اپنا کراپ ہے، ابھی تو کوئی امپورٹ ہمارا کر نہیں رہے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ لاسٹ میں شارٹیج ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے 4 صوبے نہیں رہے، 5 صوبے ہیں۔ افغانستان کو بھی ہمیں فیڈ کرنا ہے، ہمیں وہاں سپلائی دینی پڑے گی، اور یہ سپلائی دینے سے ہمارے پاکستان میں قلت کا اندیشہ ہے۔
वो लास्ट पे इस किल्लत होगी। मुजम्मिल चैपल का कहना है कि बैनुल अक़वामी मंडी में भी गंदम की कीमत बढ़ रही है, जो $500 पर टन हो गई है। फौरी तौर पर दरामदी पॉलिसी बनाकर गंदम बहरान को रोका जा सकता है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। कराची में NO 240 पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का, 9 जमातों के 35 और 7 आज़ाद समेत 42 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कौमी असम्बली के हल्का NA 240 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने का वक्त ख़त्म हो गया। 42 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए और उनमें 9 जमातों के 35 और 7 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। MKM पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा 8 उम्मीदवारों के नामजदगी फॉर्म जमा कराए। PTI के 7, पीपल्स पार्टी के 3, मुहाजिर कौमी मूवमेंट के 6, TLP के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। PSP और GDA ने 3-3, जबकि मुस्लिम लीग काफ के 1 उम्मीदवार ने नामजदगी फॉर्म जमा कराए हैं। उम्मीदवारों के कागजात की जाँच पड़ताल 14 मई तक होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 24 मई है। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त भी उसी रोज़ आवेज़न की जाएगी। 25 मई को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। NA 240 पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का 16 जून को होगा। कौमी असम्बली की ये नशिस्त MKM के इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आला सिंध ने मास ट्रांजिट अथॉरिटी को इस माह के आखिरी हफ्ते तक BRT ऑरेंज लाइन मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने भी काम ना करने वाले अफसरान को घर भेजने की वार्निंग दे दी। कराची में ट्रांसपोर्ट की झंझट से छुटकारे की उम्मीद, वजीर आला ने मई के आखिर तक ऑरेंज लाइन मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वजीर आला सिंध की जेर सदारत BRT से मुतल्लिक इजलास में वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन, मुर्तज़ा वहाब चीफ सेक्रेटरी सिंध के अलावा चेयरमैन PND, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। इस मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने BRT से ब्रीफिंग दी और बताया कि ऑरेंज लाइन के कुछ सिविल वर्क्स रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर 95% मुकम्मल है। 20 बसों के लिए SIDCL को अदायगी की जा चुकी है। BRT ऑरेंज लाइन 3.8 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जिस पर 5 बस स्टेशन हैं। इधर सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट की जेर सदारत इजलास में अफसरान को खबरदार किया गया कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अफसरान कैंप ऑफिस को अपना ठिकाना बनाएं। अगर किसी से ये नहीं हो सकता तो इस्तीफा दें, घर जाएं। सूबाई वजीर ने कहा कि 11 मई को ऑरेंज लाइन की बसें पोर्ट और मजीद 1 हफ्ते में बसें डिपो पहुँच जाएंगी। सिंध काबीना ने जेटीज को रजिस्टर करने के कवानीन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ। इजलास में साहिली पट्टी पर 64 जेटीज गैर कानूनी तौर पर चलने का इंकशाफ हुआ। महकमा लाइव स्टॉक ने ब्रीफिंग में बताया कि गैर कानूनी जेटीज से खजाने को 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सिंध काबीना ने NED यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पार्क प्रोजेक्ट की मंजूरी भी दे दी। इजलास के दौरान सेक्रेटरी दाखिला ने आदि मुजरमों की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मॉनिटरिंग ज़रूरी करार दे दी। तजवीज़ दी कि एस्टेट कैम्प और शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि आदि मुजरमों की मॉनिटरिंग है। इलेक्ट्रॉनिक चिप आदि मुजरमों को पहनाया जाएगा। काबीना के चंद वज़रा ने ऐसे कानून को इंसानी हकूक़ के खिलाफ करार दे दिया। काबीना ने मुसवदा कानून मंजूर कर लिया। कानून असम्बली को भेजने की तजवीज़ भी दी ताकि जिस पर मजीद गौर किया जाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में दावा किया कि 60 दिनों में कराची की सड़कों पर भरपूर तादाद में पब्लिक बसें चलती नजर आएंगी। कराची इंट्रा सिटी के लिए 240 बसें कल से पहुंचना शुरू हो जाएंगी। 60 दिन में रौनकें बढ़ जाएंगी। शहर कायद की सड़कों पर भरपूर तादाद में बसें चलती नजर आएंगी। वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची वालों को काबीना इजलास के बाद खुशखबरी सुना दी। प्रेस ब्रीफिंग में शर्जील मेमन ने बताया कि कराची इंट्रासिटी मंसूबे के लिए मंगवाई गई 240 बसों की पहली खेप कल पहुंचना शुरू हो जाएगी। 2 माह के अंदर शहर में बड़ी तादाद में बसें चलती दिखाई देंगी। ऑरेंज लाइन है इस वक्त, और हमारी जो इंट्रासिटी बस आनी है वो टोटली फोकस्ड में है। इंट्रासिटी में 240 बसें कराची के लिए आ रही हैं, 10 बसें लाड़काना के लिए आ रही हैं। 60 डेज चलें इसको पकड़ने, थोड़ा सेफ मैं कहता हूँ, विदिन 60 डेज आपको कराची में भरपूर तरीके से ये बसें चलते हुए नजर आएंगी। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने मजीद बताया कि इजलास में आइंदा बजट में आवाम पर टैक्स लगाए बगैर आमदनी बढ़ाने और अखराजात में कमी लाने पर भी गौर किया गया। बजट में बिल्कुल जो हमारी सैलरीज कंपोनेंट हैं, आपको अंदाजा है कि हम लोग महीने पे सिंध गवर्नमेंट कितनी सैलरीज पे करती होंगी। महीने पे आप सब माशाल्लाह असेंबली को भी कवर करते हैं, 60 अरब रुपया एवरेज में बता रहा हूँ कि हर माह सिर्फ सैलरी के कंपोनेंट में जाते हैं सिंध गवर्नमेंट, 60 बिलियन रुपीज़। सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना था कि काबीना इजलास में आदि मुजरमों की टैगिंग, सिंध को दरपेश पानी की कमी, सीनियर सिटीजन कार्ड्स के इजरा समेत माहीगीरों की जेटियों को रजिस्टर्ड करने के हवाले से भी मुख्तलिफ हिदायत जारी की गईं।
कैमरामैन हसन इकबाल के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। कराची में पानी का देरीना मसला हल करने के लिए सिंध हुकूमत कोशां है। वज़ीर-ए-आला सिंध की जानिब से किल्लत आब के खात्मे के लिए टास्क फोर्स तश्कील देने का फैसला किया गया था। MQM ने पाकिस्तान के रहनुमा रेहान हाशमी ने फैसले का खैर मकदम किया है और कहा कि गुंजान आबादी पर मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पानी का बहरान अपने अरूज पर है, जिसकी एक वजह पानी की लाइनों में बड़े पैमाने पर होने वाला रिसाव और उनकी मुरम्मत न होना है। आला की जानिब से ये इक़दाम अच्छा है कि टास्क फोर्स बना दी, लेकिन टास्क फोर्स सिर्फ टास्क फोर्स ही ना रहे बल्कि प्रैक्टिकली काम करे। ज़िला बस्ती के अंदर लोगों को बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सरे फहरिस्त नॉर्थ कराची के बहुत सारे इलाके हैं, न्यू कराची के बहुत सारे इलाके हैं। ये नॉर्थ नाज़माबाद में ब्लॉक डी है, कौसर न्याजी कॉलोनी है, एच ब्लॉक की कई गलियाँ हैं, एल ब्लॉक है, फेडरल एरिया के कुछ इलाके हैं, पापोश है, नाज़माबाद है, गोली मार है। ये कोई इलाका ऐसा नहीं है ज़िला बस्ती का जो कि बचा हुआ हो। डी ब्लॉक में बदतरीन सूरत हाल है, लोग सड़कों पर आ गए हैं। ये आपका कौसर न्याजी कॉलोनी है, आपका एल ब्लॉक का इलाका है जहाँ पर लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। अच्छा, अब ऐसी सूरत हाल में माजी में भी आपने देखा कि वाटर कमीशन के जरिए चीज़ें कि हम भी कंप्लेन लेकर गए, वहाँ पर भी कुछ बेहतर करने की कोशिश की गई। लीकेजेस हैं, चोरी है, कराची के रिजर्वायर्स जो कराची के लिए मख्तस होने चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। उन रिजर्वायर्स से लेकर यहाँ तक आने में पानी के 12-12 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उस रास्ते में सैकड़ों की तादाद में लीकेजेस कर दी जाती हैं, चोरी कर लिया जाता है। इसको संजीदगी से देखना ज़रूरी है। बढ़ते दरामदे बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपया शदीद दबाव का शिकार है। एक दिन में डॉलर $1.13 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह $188.66 पर बंद हुआ और ओपन मार्केट में भी डॉलर $1 महंगा होकर $190 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल, रुपया शदीद दबाव का शिकार। एक दिन में अमरीकी डॉलर $1.13 महंगा हो गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में रुपए की कदर में 0.60% कमी हो गई। इंटर बैंक में डॉलर पहली बार $188.66 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि बढ़ते दरामदे बिल, बैरूनी कर्ज की मुसलसल अदायगी और तिजारती खसारा बढ़ने पर रुपये पर शदीद दबाव है। आज माशी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक और खराब दिन रहा। आज डॉलर जो है ना 188.70 तक गया है, जो कि इस वक्त का बुलंद तरीन रिकॉर्ड है। इससे पहले डॉलर 189.10 तक भी गया था ट्रेडिंग के दौरान पिछले माह अप्रैल में, लेकिन जब वो क्लोज हुआ था तो 188.20 के ऊपर हुआ था। लेकिन आज खासा हमारे रुपए के ऊपर दबाव है, क्योंकि जो हमारी जो पेमेंट्स हैं वो तकरीबन 2 माह में $9 बिलियन की हैं, जिसमें इम्पोर्ट और हमारे बैरूनी खर्चों की अदायगियाँ हैं। इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में भी अमरीकी डॉलर $1 महंगा होकर $190 की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में यूरो $1.5 महंगा होकर $200 और बरतानवी पाउंड भी $1.5 महंगा होकर $236 पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मरती धर्म 10 पैसे इजाफे से $51.10 और सऊदी रियाल 30 पैसे महंगा होकर $50.20 पर पहुँच गया है। अशरफ खान, सिटी 21। खवातीन के लिए सोने की खरीदारी ख्वाब बन गई। डॉलर की ऊंची उड़ान ने सोना भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। एक तोला सोना $1400 महंगा होकर मुल्की तारीख में पहली बार $1,34,400 का हो गया। खवातीन के लिए बुरी खबर, डॉलर की ऊंची उड़ान ने सब कुछ महंगा कर दिया। मुकामी सराफा बाजार में एक तोला सोना $1400 महंगा हो गया। एक तोला सोने की कीमत मुल्की तारीख में पहली बार $1,34,400 की बुलंद सतह पर पहुंच गई। साथ ही 10 ग्राम सोना भी $1,200 महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह $1,15,226 पर पहुंच गया है। ऑल सिंध सराफा बाजार डीलर अब्दुल्ला चांद का कहना है कि आलमी मार्केट में सोना सिर्फ $3 महंगा हुआ, लेकिन डॉलर में मुसलसल महंगा होने से सोने की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ। गोल्ड मार्केट पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे है। उसकी सबसे बड़ी वजूहत यह है कि आज इंटर बैंक में बुलंद तरीन सतह हो गई है। डॉलर बहुत हाईएस्ट रेट पे चला गया है। 188 तकरीबन 66 पैसे का डॉलर हो गया जो इंटर बैंक में। उसकी वजह से आज पाकिस्तान में गोल्ड जो है वो बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। और आज आलमी मार्केट में भी जो है सोना बढ़ा है, मगर उसकी आज जो सोने की वजूहात है ज़्यादा बढ़ने की, वो हमारे यहाँ इंटर बैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान है। सरफा बाजार डीलर का कहना है कि आलमी मार्केट में सोना $3 महंगा होकर $1863 फी औंस का हो गया है, जो दुबई से अभी भी $1500 फी तोला अंडर कॉस्ट है। अशरफ खान, सिटी 21। मईशत का बुरा हाल है। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर राशिद सदीकी ने कहा कि डॉलर महंगा होने से मईशत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। हुकूमत नए माली साल के बजट में टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स ना लगाए। मुल्क की मईशत मुश्किलात से दो चार, सनअतकार बेचैनी का शिकार। पार्टी के साबिक सदर राशिद
राशिद सिद्दीकी का कहना है कि इस वक्त मईशत का बुरा हाल है। डॉलर महंगा होने से मईशत पर मनफी असरात मरतब होते हैं। मईशत के खराब डाटा से स्टॉक मार्केट भी गिरती है। राशिद सिद्दीकी ने नए बजट में पॉलिसी इकदाम उठाने और टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स न लगाने का मुतालबा कर दिया। जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं, अगर इन्हीं पे आप टैक्स का बोझ लाते जाएंगे और अगर इस गवर्नमेंट ने अब आने के बाद अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं करा और टैक्स नेटवर्क को नहीं बढ़ाया, तो मैं समझ लूँ कि जो हालात होंगे और जो रही सही जो बची कुची मईशत है वो भी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। राशिद सिद्दीकी का कहना था कि हुकूमत की आमदनी बढ़ेगी तो ही IMF से अपनी मर्जी की बात की जा सकती है और अमल ना करने पर IMF की सख्त शराइत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो कारोबार कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो 1 अरब रुपए का कर रहा है, चाहे वो 1 अरब रुपए कर रहा है, उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो आपका मुल्क आगे चलेगा और हुकूमत के पास रेवेन्यूज़ होंगे। और जब आपके पास टैक्स होंगे, रेवेन्यूज़ होंगे, टैक्स आर होंगे, तो आप जाके IMF के साथ अपनी मर्जी की मनमानी बार्गेनिंग भी कर सकेंगे। सनतकारों का कहना है कि नए टैक्स दहंदगान को टैक्स नेट में लाया जाए और तजवीज़ दी कि फाइलर्स और नॉन फाइलर के मसले को ख़त्म किया जाए। जो अभी कारोबार कर रहे हैं उनको रजिस्टर्ड होना होगा। कैमरामैन अब्दुल कयूम के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। वज़ीर बलदात सिंध की हिदायत पर एंटी थेफ्ट सेल वोटर बोर्ड ने पानी चोरों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। लांडी लेबर स्क्वायर में वोटर माफिया के खिलाफ पुलिस के हमरा बड़ी कार्रवाई। लांडी इंडस्ट्रियल एरिया में पानी सप्लाई का बड़ा गैर कानूनी हाइड्रेंट पकड़ा गया। जीनत फैक्ट्री की आड़ में जदीद प्लांट और ज़ख़ीरा आब के बड़े ज़मीन टैंक बनाए गए थे। योमिया सैकड़ों वाटर टैंकर इंडस्ट्रियल एरिया में महंगे दामों फ़रोख्त किए जाते थे। मुतादिद वाटर टैंकर, मोटरें, पाइप्स और दीगर आलात कब्जे में ले लिए गए। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने हुकूमत को नए माली साल के लिए बजट तजावीज़ दे दी। टैक्स में रजिस्टर्ड ना होने वाले नॉन फाइलर्स पर भारी टैक्स शरह आयद करने की तजवीज़ दी गई है। नॉन फाइलर्स पर 2000 सीसी वाली गाड़ी खरीदने पर टैक्स की शरह 3 गुना कर दिया जाएगा। नॉन फाइलर्स के लिए बैनुल-अक़वामी बिजनेस क्लास टिकटों पर 50,000 रुपये विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़ दे दी। हुकूमत को फराम करदा बजट तजावीज़ में इनकम टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में नुमाया इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ये भी कहा है कि फाइलर्स और नॉन फाइलर के लिए अलग अलग विद होल्डिंग टैक्स से मईशत को दस्तावेज करने का प्लान था। काउंसिल के मुताबिक नॉन फाइलर से विद होल्डिंग टैक्स तो लिया गया लेकिन टैक्स नेट में नहीं लाया गया। बिजनेस काउंसिल ने कहा है कि हुकूमत नए बजट में मौजूदा टैक्स दहंदगान पर बोझ न डाले बल्कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए गैर रजिस्टर्ड अफराद पर टैक्स रेट बढ़ा दे। तजवीज़ दी है कि गैर रजिस्टर्ड सनती तजारती इदारों पर सेल टैक्स 17% से बढ़ाकर 30% कर दिया जाए। गैर रजिस्टर्ड कारोबार के बिजली के बिल के जरिए रजिस्टर्ड किया जाए। तजवीज़ दी कि इनकम टैक्स के तहत तमाम छूट ज़री आमदनी पर सिर्फ फाइलर्स को ही दी जाए। नॉन फाइलर्स के लिए बैनुल-अक़वामी बिजनेस क्लास टिकटों पर 50,000 रुपए विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स पर 2000 सीसी की गाड़ी खरीदने पर 8 लाख रुपए एडवांस इनकम टैक्स को बढ़ाकर 24 लाख करने की तजवीज़ दी गई है। ये भी कहा है कि 900 स्क्वायर फीट तक फाइलर्स और नॉन फाइलर पर जायदाद की फरोख्त पर एडवांस इनकम टैक्स 1% है जिसे बढ़ाकर 10% करने की तजवीज़ दी गई है। अशरफ खान, सिटी 21। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान रहा। गुज़श्ता रोज की मंदी के बाद मार्केट में रिकवरी हुई। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि कल के शदीद दबाव के बाद बड़े शेयर्स में सरमायाकारी बहाल हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 111 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 0.26% इजाफे से 43,504 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता रोज की मंदी के बाद मार्केट में रिकवरी है। मार्केट की मौजूदा सूरत-ए-हाल में नई सरमायाकारी लाना चैलेंजिंग है। माशी आदत-ओ-शुमार की बेहतरी से मार्केट मजबूत हो सकती है। तो इसलिए हालात चैलेंजिंग है, मगर मुझे उम्मीद है कि ये हुकूमत जो है ये IMF से मुज़ाकरात कर लेगी और सब्सिडीज़ को ख़त्म करना है या जो दूसरे प्रायर एक्शन हैं वो कर लेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। देखिए, ब्रोकर तो हमेशा से ही रेडी होते हैं। मार्केट में नए प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा जगह है। हमारी जिस तरह से इकॉनमी है, हमारी 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह है नई कंपनीज़ को। हमारे ख्याल में तो हर महीने 2 से 4 नई कंपनियां लिस्ट होनी चाहिए मार्केट में, इतनी कैपेसिटी है। लेकिन चूँकि लोग डरते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं स्टॉक मार्केट में, इस हवाले से आने को थोड़ा सा कतरा रहे हैं।
ऑल दो कि जैम बोर्ड स्टार्ट किया स्टॉक मार्केट ने, लेकिन अभी तक आप देखेंगे उस पर इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। इस पर थोड़ा सा काम करने के लिए रेगुलेटर को मेरे ख्याल में ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक एक्टिविटीज़ लोगों की उस तरह से जनरेट नहीं हो पा रही है जैम बोर्ड के अंदर, ना वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। 6.86 अरब रुपए मालियत के 23 करोड़ 38 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया। स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर 346 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 155 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 168 कंपनियों के शेयर्स में कमी हुई। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बावजूद भी नई लिस्टिंग के तहत जेम बोर्ड लिस्टिंग में सुपरनेट लिमिटेड रजिस्टर तकरीब हुई। स्टॉक इंतजामिया ने नई लिस्टिंग को खुश आइंद करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई कंपनी की लिस्टिंग जैम बोर्ड लिस्टिंग में सुपरनेट लिमिटेड की शमूलियत कारोबार का आगाज रिवायती घंटा बजाकर किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सीईओ सुपरनेट लिमिटेड का कहना था कि आईटी सेक्टर सरमायाकारी में बेहतरी आई है। हमें अपना सिस्टम मजबूत बनाना होगा ताकि बैरून मुमालिक से काम आए। Not only investors understand कि this is an era of IT or technology and therefore we are in the right direction and we are also seeing again मतलब continuously growth in this area. मार्केट में नई लिस्टिंग को स्टॉक एक्सचेंज इंतजामिया ने खुश आइंद करार दिया। तकरीब में स्टॉक एक्सचेंज इंतजामिया समेत जैम बोर्ड मेंबरान ने भी शिरकत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ई स्टैंपिंग का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं सूबे में तालीम, सेहत, सलामती और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के इक़दाम तरजीहात में शामिल हैं। ई स्टैंपिंग की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर आला हाउस में मुनक़्क़द हुई। इस मौके पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सूबाई हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। अभी भी इसमें मज़ीद इस्लाहात और आसानियाँ पैदा करने की ज़रूरत है। हमारी हुकूमत ने हमेशा कोशिश की है कि टैक्स रेट मुनासिब हों। कोशिश है कि गरीब तबके पर बोझ ना पड़े। ई स्टैंपिंग वेब बेस्ड चलान ऑनलाइन हासिल होंगे। ये चलान नेशनल बैंक भी जारी करेगा। नेशनल बैंक ने अपनी 22 ब्रांचेज़ में ये ई स्टैंपिंग का सिस्टम मुतारिफ करवाया है। अब ये नेशनल बैंक और पाकिस्तान के मुल्क की 300 ब्रांचेज़ में भी जारी होंगे। तकरीब में नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी, वज़ीर रेवेन्यू मखदूम महबूब, चीफ सेक्रेटरी और दिगर ने भी शिरकत की। नॉर्वे के सफ़ीर की एडमिनिस्ट्रेटर कराची मिर्ज़ा वहाब से मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात बल्दिया उज़्मा कराची के सदर दफ्तर में हुई। मुलाकात में सेकंड सेक्रेटरी पॉलिटिकल और प्रोग्राम एडवाइज़र डेवलपमेंट मोहम्मद बिलाल मजीद भी नॉर्वे के सफ़ीर के हमरा मौजूद थे। मिर्ज़ा वहाब ने नॉर्वे के सफ़ीर को KMC बिल्डिंग की तारीख की अहमियत से आगाह किया। बैरिस्टर मिर्ज़ा वहाब ने शहर में जारी तरक्याती कामों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और दीगर अमूर के हवाले से नॉर्वे के सफ़ीर को तफसीलात भी बताईं। नॉर्वे के सफ़ीर और उनके वफ़द के अरकान ने इस उम्मीद का इजहार किया कि कराची की मौजूदा इंतज़ामिया की तरफ से शहर की बेहतरी और तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दाम के मुफीद नताइज सामने आएंगे और कराची के शहरियों को जल्द पहले से बेहतर और जदीद शहरी सहूलियात मैसर आएंगी। मिर्ज़ा वहाब ने नॉर्वे के सफ़ीर और उनके वफ़द के अरकान को बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से शील्ड पेश की और सिंध की रवायती अजरक और टोपी भी